Why should you? Around 30 students are there, 31 students are there. So we will be starting our session for today, and rest of the students will join in between. तो जो बाकी लोग बचे हैं वो बीच में ही ज्वाइन कर लेंगे. हम अब शुरू करते हैं आज का सेशन. So till yesterday we have studied the forms of organization, various forms of organization. So we'll continue from the next unit. I'll be sharing the screen to you all. I think the screen will be visible to you now. Is my voice clear to you all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, and screen is visible, right? Yes, sir. So, okay, I'll just like yesterday, I'll try to explain everything in English and Hindi, both, so that everyone around the country can understand who is from different part of the country. So I'll teach according to it in both languages. And if anyone have any issues, they can raise their hands and ask for their queries. So till yesterday we have completed we were studying the block 2. Unit 5 was completed yesterday, forms of organization. Today we'll be studying unit 6 and possibly unit 7 and 8 if possible. So 35, the forms of organization. So yesterday we have studied about the forms of organization. Anyone remembers what are the forms of business organizations? What forms of business organizations we have studied yesterday? If anyone remember. Yes, Mevalal. Sole proprietorship और Yeah, partnership yeah, correct. और joint joint Hindu family and joint company. Okay. There are several forms of. Anyone else? किसी और को पता है? Corporate form of organization. हाँ, okay. Another one? Another one?
सर यूनिट कौन सी है ये? This is unit 6. Page number you can see on the screen. If anyone is not able to answer, they can switch off their mics and we will discuss the chapter. We will start discussing the chapter. हम start करते हैं chapter को discuss करना. सब अपने mics close कर देंगे. So हमने कल जो forms of organization पढ़ी थी वो आप screen पे देख सकते हैं अभी. There are basically 5 forms of organization: sole partnership, proprietorship, then partnership form of organization, private limited company, public limited company, cooperative organization. We have studied about these 5 organization. हमने इन 5 organizations के बारे में कल पढ़ा था. We will continue from there only, from unit 6. So unit 6 is forms of business organization, second part. And in this unit we will be studying about what are the what will be the ideal form of organization, कि सबसे अच्छी कोई एक organization कौन सी हो सकती है, उसकी क्या qualities हो सकती हैं, what will be the qualities of ideal form of organization. Then we will be studying about the criteria of starting a business. Then will be how the business can be expanded, what will be the ideal conditions in a form of organization. So in unit 5 we have learned, just like I told you, in unit 5 we have learned 4 forms of organization: sole proprietorship, partnership, joint stock company, and cooperative company. So we'll be studying about the requisites of an ideal form of organization. एक ideal form of organization के क्या हमारे जो characteristics हो सकते हैं, क्या हमारे features हो सकते हैं. एक ideal एक अच्छी form of organization, an ideal form of organization के क्या characteristics हो सकते हैं. मतलब कि क्या हो सकता है? किसमें प्रियांशु? पार्टनरशिप. पार्टनरशिप जैसे कि मैंने कल बताया था कि अगर आप किसी 5 लोग या 10 लोग मिलकर एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो एक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें जैसे सर सबके पास अलग अलग एक्सपर्टीज होती है. जैसे सर साझे में काम करना भी तो हो सकता है. हाँ, मिलकर काम करना, साझे में काम करना, वो एक ही बात है. भी हो जिनके सकता पास है. जो, हाँ बिल्कुल हो सकता है. Yes, sir. तो अब इस यूनिट में हम पढ़ेंगे, वी विल बी स्टडीइंग इन दिस यूनिट दैट व्हाट आर द आइडियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सबसे एक आइडियल जिसमें सारी कंडीशंस अच्छी हो, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है. तो उसका फर्स्ट पॉइंट होगा ईज ऑफ फॉर्मेशन. ईज ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है, द मीनिंग ऑफ ईज ऑफ फॉर्मेशन इज that if an organization is formed using if an organization is formed by 10 persons, then ease of formation will be that all those 10 persons, यानी कि वो सारे 10 जो लोग हैं वो आराम सारे एक आइडियल कंडीशन में, जिनमें सब एक दूसरे के लिए एक दूसरे की कंडीशंस को समझते हों, that all of those partners understand the condition and start a business. तो ये एक ईज ऑफ फॉर्मेशन होगा. देन ईज ऑफ फॉर्मेशन में आएगा दैट एवरी लीगल फॉर्मेलिटी, जो कल हमने पढ़ा था अबाउट द डीड्स व्हिच वी क्रिएट व्हेन वी फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज, प्रोसीजरल डिलेज, ये सब जब ऑब्टेनिंग लाइसेंसेस, जितने भी गवर्नमेंट के लाइसेंस होंगे उनको ऑब्टेन करना, उनको लेना, और एवरीथिंग एक्सपेंसेस, अगर वो सब कुछ बड़ा इजीली हो जाएगा, सब कुछ इजीली अवेलेबल होगा, गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करेगी, द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग इन क्रिएटिंग ऑल दोज लीगल लाइसेंसेस, ऑल दोज लीगल फॉर्मेलिटीज, तो इट विल कम अंडर ईज ऑफ फॉर्मेशन. इफ an organization is formed without any difficulty about all those things which we have discussed, अगर कोई भी ऐसी डिफिकल्टी नहीं आती तो वो एक ईज ऑफ फॉर्मेशन में होगा. एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन वही होगी जिसके अंदर हमें कोई डिफिकल्टी ना आए, सारा प्रोसेस बड़ा स्मूथली चले, एवरी प्रोसेस रन स्मूथली while creating an organization. Then second point is scope of raising capital. So if in an ideal organization, the scope of raising capital will be depend on the amount of capital required, which is determined by the nature of business and scale of operations. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एक छोटी सी रिटेल शॉप खोलना चाहते हैं तो कैपिटल जो हमें नीडेड है वो बहुत कम होगा, वो बहुत ज्यादा नहीं होगा. बट अगर आप एक शुगर फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो कैपिटल बहुत ज्यादा होगा. तो आइडियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी? व्हाट विल बी द आइडियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच द स्कोप ऑफ रेजिंग अमाउंट ऑफ कैपिटल
इज वेरी इजी, यानी कि आप जो एक कैपिटल को रेज करना चाह रहे हैं वो बड़ा आसानी से रेज हो जाएगा। हमारे पास सारे जो कंडीशंस हैं वो ट्रू, सारे कंडीशंस बड़े इजीली अवेलेबल होंगे। यू कैन इजीली रेज दोस कैपिटल। इट विल आल्सो फॉर्म एन आइडियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी हमने कल भी डिस्कस करी थी। वी हैव डिस्कस द लाइबिलिटी यस्टरडे आल्सो, दैट लाइबिलिटी इज अबाउट इफ एन लॉस। लायबिलिटी का मतलब बता दीजिए। लाइबिलिटी होती है जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं, कोई बिजनेस फॉर्म करते हैं, तो उसमें बिजनेस में जो आपने कैपिटल लगाया है, कोई आपने इक्विपमेंट लगाया है, पैसा लगाया है, तो वो सारी आपकी लाइबिलिटी में काउंट होती हैं। अगर उनमें उनको कुछ भी होगा, इफ एनीथिंग हैपेंस टू दोज इक्विपमेंट्स और दोज कैपिटल और दोज मनी, एवरी रिस्क इज लाइबिलिटी, इज योर लाइबिलिटी। अगर आप सिंगल बिजनेस ओनर हैं जिसने एक ही बिजनेस शुरू करा है, तो आपकी लाइबिलिटी होंगी वो सारी। अगर उनमें से किसी भी चीज को, फॉर एग्जांपल इफ अगर किसी आपके बिजनेस में फायर, आग लग जाती है, इफ योर बिजनेस कैचेस फायर, तो जो रिस्क होगा, जितना भी आपका जो लॉस होगा, वो सारा आपका लाइबिलिटी होगा। आपको उसके किसी भी तरह पूरा करना होगा। अगर आपने, आप अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज। उसके बाद होता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। अगर ऑपरेशंस बड़े इजीली चलेंगे, इफ द ऑपरेशंस आर रनिंग वेरी इजीली, एवरी ऑपरेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ मैनेजमेंट, अगर बिजनेस के टॉप से बॉटम तक बड़े इजीली ऑपरेशंस हो रहे हैं, फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, एवरी मैनेजमेंट इज अंडरस्टैंडिंग द डिसीजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट्स, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन में आ जाएगा। ये भी एक आइडियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी। देन स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं, देयर आर मेनी कंपनीज जो स्टार्ट होती हैं विच स्टार्ट्स एंड एंडेड वेरी इजीली, जो एक साल में बंद हो जाती हैं, 2 साल में बंद हो जाती है, दे गेट क्लोज्ड इन 2 years और 3 years। तो it is very important to start a company, then to continue that business. Continuing that business is also very important. Not only starting a business, start करना ही important नहीं है, continue करना बहुत important है। तो अगर आप अपने जो सारे कस्टमर्स हैं, फॉर एग्जांपल यू आर रनिंग अ बिजनेस ऑफ यू आर रनिंग अ स्मॉल बिजनेस, अगर आप एक छोटी सी दुकान पे काम कर रहे हैं, वो भी एक बिजनेस है, तो अगर आप अपने कस्टमर्स को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, यू आर ट्रीटिंग योर कस्टमर्स वेरी वेल, तो स्टेबिलिटी रहेगी, कंटिन्यूटी रहेगी, दैट कस्टमर विल कम अगेन, वो कस्टमर दोबारा से आएगा और वो अपने साथ दूसरे कस्टमर्स को भी लाएगा, दैट दिस शॉपकीपर और दिस बिजनेसमैन प्रोवाइड्स बेस्ट सर्विसेज, ये अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी डिपेंड ऑन द बिहेवियर ऑफ दैट कंपनी, द बिहेवियर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो सिंगल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन है तब भी, और जो अगर वो मल्टी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन है तब भी। तो इसी में ही आइडियल आ जाते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट, हाउ मैनेजमेंट इज एक्टिंग, मैनेजमेंट कैसे एक्ट कर रही है। अगर वो अच्छा है, मैनेजरियल एफिशिएंसी, अगर मैनेजर्स अच्छे हैं तो वो एक अच्छी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी। देन एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशंस, तो देयर आर मेनी कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट ऑन्ड होती हैं, जिसमें 51% शेयर गवर्नमेंट का होता है, बाकी शेयर्स प्राइवेट जो बाकी लोग हैं उनको दिया जाता है। इन केसेस में गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल है एक ऑर्गेनाइजेशन पे, अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो वो भी डिपेंड करेगा कि वो एक अच्छी आइडियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं। फिर बिजनेस सिक्रेसी, टैक्स बर्डन, मतलब टैक्स को अगर आप अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, ऑनरशिप जो है वो किसके पास है, कितना रिस्क कितने कौन बियर कर रहा है, हु इज बियरिंग, हु आर नॉट रेडी टू बियर रिस्क और हु आर रेडी टू बियर, some people may want to own a part of a capital without strong desire to control the affairs of the business. So there are many things, if these things are running smoothly, तो वो एक ideal form of organization होगी। अगर ये सारी चीजें बड़े smoothly रन करती हैं, कोई इशू नहीं आते हैं, तो एक ideal form of organization होगी। तो कल हमने पढ़ी थी ये 5 फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके बीच में एक डिफरेंस दिया हुआ है बुक में, क्योंकि कल हमने इसको डिस्कस कर लिया था, तो इस डिफरेंस को आप खुद से पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है स्पेसिफिक रेगुलेशन। तो एवरी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक इंडियन गवर्नमेंट ने रेगुलेशन बनाया है। इंडियन गवर्नमेंट हैव फॉर्म्ड अ रेगुलेशन फॉर एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, देन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट 1956 है, एंड सो ऑन। तो ये सब डिफरेंस है। इन डिफरेंस को अगर आप एक बार इफ यू व्यू दिस डिफरेंसेस वंस, तो ये आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा इन सारी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को याद करना। देन क्राइटेरिया फॉर द चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो आप व्हेन यू आर सेलेक्टिंग कि आपको किस बिजनेस में आपको स्टार्ट करना है बिजनेस, आपको एक्सपेंड करना है बिजनेस, यू वांट टू एक्सपेंड योर बिजनेस, यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस, देन यू हैव टू चूज दैट व्हिच टाइप ऑफ बिजनेस यू वांट टू डू।
which type of criteria, what are the criteria for the organization and which type of business you want to start. आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या क्राइटेरियाज हो सकते हैं किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए. तो देर आर मेनी क्राइटेरियाज, सम ऑफ देम आर डिफाइंड हेयर. जैसे कि कुछ क्राइटेरियाज यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि नेचर ऑफ बिजनेस, ने बिजनेस का नेचर कैसा होना चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या किस क्राइटेरिया के अंडर फॉल करते हैं. देन वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, एरिया ऑफ ऑपरेशन, डिजायर ऑफ कंट्रोल, कितना आपको कंट्रोल चाहिए, कितना आप कंट्रोल किसी और को दे सकते हैं, दैट विल कम अंडर डिजायर ऑफ कंट्रोल. एरिया ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है दैट कहाँ पर आप अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस इन नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री, बट द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, दैट इज यूजलेस इन नॉर्थ पार्ट एंड it may be useful in the south part or it may be useful in the east part. So area of operation is very important, that which area you want to start your business. So capital requirements is all those things which is required to start a business. जो हमारे financial requirements हो सकते हैं, every requirement which is the things which are required to start a business comes under capital requirements. Then extent of risk and liability, government regulations. So everything should be viewed while starting a business. These things should be viewed. Extent of risk, कितना risk होगा, कितनी liability होगी, these things should be viewed while starting a business. तो criteria at the time of expansion, जब आप अपना business expand करते हैं, when you start to expand your business, first of all you will start a business. Then after some time, when your business becomes stable, you will think about expanding it to various parts of the country or globally. So what are the criterias at the time of expansion? When you are expanding your business, what will be the criterias? So these are the criteria. These are very simple criteria. You can simply read and understand. इनको आप बड़े आराम से पढ़ के समझ सकते हैं ये क्या क्या criteria चाहिए at the time of expansion of business. For example, need of larger financial services. आपको बहुत सारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए जब आप एक अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं. Then increase of tax liability, increase in the problem control coordination, and so on. Choice of form of organization, for वही that is the same thing that while starting a business, अगर आपको कौन सी organization को choose करना है, that is the choice of form of organization. हम इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. On the basis of above discussion, we can conclude that the small businesses like grocery stores, hairdressers, small restaurant, hotels, small auto workshops, stationery shops, confectionaries, bakeries, dry cleaner shops, and so on. These are the small shops which are available in the market, जो बहुत हमारे मार्केट में आसपास भी available हैं. These all are the small businesses. The reasons for preferring sole proprietorship form of organization for these type of businesses are abundantly clear. They function on a small scale, cater to the needs of limited market, or deal with the restricted number of customers or dealers, require a very limited capital. So you can easily understand with this that these are very small businesses. ये बहुत छोटे business हैं, इसमें छोटे से capital चाहिए, छोटे से resources चाहिए, बहुत कम resources चाहिए. Restricted number of customers होते हैं from around the city or from around the area. The customers will be from around the area only. So this is a sole proprietorship, जो हमने कल भी पढ़ा था, type of business, form of business. Then businesses on a relatively larger scale in generally organized proprietorship firm, service enterprises like auto workshops, larger restaurant, hotels. So these comes under larger scale organization, जिसमें आते हैं larger hostel, restaurants, hotels, large scale retail houses, industrial regulations, and so on. So these are the business form of organization. Then enterprises where the risk is involved, quite significant scale of operation, medium, like choice of private company, transport undertaking, hire purchase units, finance and losing. So these are the businesses in which risk is involved, like leasing companies who are giving, जो कंपनीज आपको लीज पे कुछ चीज देती हैं, कोई पैसा देती हैं, लीज पे कोई प्रोडक्ट देती हैं. दीज आर रिस्क इज इन्वॉल्व इन दीज काइंड ऑफ बिजनेसेस. फाइनेंस बिजनेस जो बैंक्स हैं उसमें भी रिस्क इन्वॉल्व है, या आप अपना फाइनेंसिंग एक फर्म खोल लेते हैं, इफ यू आर ओपनिंग अ फाइनेंसिंग फर्म, दैट इज रिस्क इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ एंटरप्राइजेस. मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, so there can be loss in manufacturing companies, so risk is involved in this. And what are large scale business operations? The most suitable form of business organization is public limited company. So public limited company, we will study about it later. Public limited company क्या होती हैं? जो गवर्नमेंट owned होती हैं, जो public limited companies होती हैं. And these companies बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, क्योंकि जैसे कि कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, स्टील अथॉरिटी. तो जो सेल है जैसे कि, और BHEL हो गया, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया,
So these all are public limited companies. These company limited companies are spread all over the country. ये पूरी कंट्री हमारी सारी all over the country, पूरी कंट्री के ऊपर स्प्रेड हैं ये वाली जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर आती हैं these companies. और the principal reasons are the necessity of large capital and the large amount of risk involved. क्योंकि ये साइज में लार्ज हैं these companies, so इनमें रिस्क भी ज्यादा इन्वॉल्व होगा, कैपिटल भी ज्यादा इन्वॉल्व होगी, तो ये सारी आती हैं लार्ज स्केल कंपनीज के अंदर. तो ये यूनिट हमारी क्योंकि ये छोटी सी यूनिट थी और पिछली यूनिट के ऊपर ही डिपेंडेंट थी, तो यूनिट यहाँ पर खत्म होती है. अगर इसमें कोई इशू है तो हमें मुझे बता सकते हैं. यू कैन रेज योर हैंड्स एंड आस्क फॉर एनी क्वेरीज. नहीं तो हम सेकंड यूनिट पे चलेंगे 5 मिनट्स बाद. आफ्टर 5 मिनट्स विल बी मूविंग ऑन द सेकंड यूनिट. इसका मैं एक ओवरव्यू दोबारा से दे देता हूँ. इसमें हमने क्या क्या पढ़ा यूनिट 6 में. तो यूनिट 6 में हमने पढ़ा डिफरेंसेस बिटवीन द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. प्राइवेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, पब्लिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और फिर कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इनके बीच में हमने डिफरेंसेस में अवेलेबल थे और वो आप एक बार पढ़ सकते हैं. ये हमने इस यूनिट में देखा. चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमें कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की चूज करना है व्हाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस. विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी हैव टू चूज, ये हमने पढ़ा. लार्ज स्केल हो सकता है, स्मॉल स्केल हो सकता है, मीडियम स्केल हो सकता है. स्मॉल स्केल जो आसपास की हमारी शॉप्स होती हैं वो एक स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है के अंदर आती हैं. द शॉप्स नियर टू आवर होम्स कम्स अंडर स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस. तो हमने पढ़ा चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देन क्राइटेरिया फॉर द चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट विल बी द क्राइटेरिया फॉर चूजिंग अ बिजनेस. क्या क्राइटेरिया रहेंगे चूज करने के लिए, हमें कितना बड़ा बिजनेस शुरू करना है, क्या हमारा नेचर होगा बिजनेस का, एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, ये सब हमने पढ़े. डिफरेंसेस पढ़ा. आइडियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, व्हाट इज द आइडियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हमने इसमें पढ़ा. So we'll be starting next unit in 5 minutes. If anyone have any issue, they can ask. Anjo CJ. Yep. What is ease of formation? Sorry? Ease of formation. Ease of formation. Yes. Ease of formation. I don't think we have studied ease of formation in this unit. Which page? Point. 6.2. 6.2. Okay. 6.2 is requisites of an ideal form of business organization. Okay. First point is of. Okay. Ease of formation. First Yes. point. Yes. So ease of formation is मैंने ये पहले बताया था. Ease of formation is, I have told you earlier also that how easily an organization is formed comes under ease of formation if everything runs smoothly. If everything goes smoothly. For example, if you want to create an organization, there are many formalities you have to do. For example, 10 people are starting an organization, 10 people are starting a business. So there will be many things which will come under. For example, the mental level of all those 10 people will come under ease of formation. If all those persons are agreeing on one thing and they are starting a business, that will be a ease of formation only. Then there are legal formalities while starting a business. For example, 10 persons are starting a business. There will be deed between them. There will be a issue of what percentage of partnership what person will get. One person will be get, and accordingly all those person will be divided. For example, one person have given money, one person have given expertise, one person have given anything else. So in these things it will be decided. In these things it will be decided that which person will get how many what kind of share. For example, one person will get 10% share, one person will get. So if all those things are running smoothly, if all legal formalities are running smoothly, if you have formed an organization and you have registered that organization with government very easily, you do not find any difficulty in doing that. These all things come under ease of organization. वैसे ease का मतलब हिंदी में होता है शांति, सुख, सुविधा. So if you understand Hindi, it is if everything goes very easily, very calmly. Shanti is one of the words which comes under ease of organization. So everything goes calmly while starting an organization. That all comes under ease of formation. So your organization is formed very easily without any difficulties.
So we'll be starting the next unit in next 5 minutes. If anyone have any queries, they can ask after 5 or 6 minutes. We will join back.
मार्क ऑफ कर रहे हैं। Pinta. Pakai berita berapa? Make it so simple. Energy. Oi, tu gusta Espanha? وانت صغير ديتش ما احكي وصمت وتبارنا काम हो पाएगा। किसी के पास बुक्स है इसकी क्या? शाम को अपना स्कूटी पे रेडी स्टॉक नमकीन So we'll be continuing our class now. So I don't think anyone have an issue in that unit, 6th. We'll be starting with the 7th unit. So 7th unit is public enterprises. Public enterprises क्या होती हैं? What are the public enterprises? Public enterprises are those enterprises which are run by government. जो गवर्नमेंट रन करती है. देयर आर मेनी टाइप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. बहुत सारे टाइप्स की पब्लिक एंटरप्राइजेस होती हैं, जैसे कि मनी रत्ना कंपनी होती हैं, नवरत्ना कंपनीज होती हैं, पीएसयूज आपने सुना होगा टर्म, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं. देयर आर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, नवरत्ना कंपनीज, मनी रत्ना कंपनीज. दीज ऑल आर द स्कीम्स विच आर रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है और इनके अंडर देयर आर मेनी टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस. बहुत सारी टाइप्स की एंटरप्राइजेस होती हैं. These enterprises are run majorly by government only, and half of the share is given to public. So, for example, कोई भी अगर हम PSU लेते हैं, if we take an example of an PSU, a PSU is the 51% of shares are shared by government. Government 51% शेयर को होल्ड करती है, जिससे कि जो कंट्रोल है उस PSU पे वो गवर्नमेंट का रहे. दे होल्ड 51% शेयर so that the government have a hold of that organization or that enterprises. So we'll be study about those enterprises in detail in this unit. What is a public enterprise? Feature and objective of public enterprise. What are the contribution of these enterprises? So basically these enterprises are formed so that it will boost the economy of India. ये हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने के लिए ये इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी गई हैं, जिसमें पब्लिक प्राइवेट जो गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, मेजरली होल्ड बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इसके मोस्ट ऑफ द शेयर्स होल्ड करती है. गवर्नमेंट इज शेयरिंग द मोस्ट ऑफ द शेयर ऑफ दीज काइंड ऑफ एंटरप्राइजेस. So what are the public enterprises? You can easily understand with that 7.1 diagram. आप 7.1 diagram से समझ सकते हैं. There are departmental organization. We will be studying about departmental organization later in this unit. Then there are public corporation. Then there are government companies. So what is a public enterprise? Just like I told you, the term public enterprise as a business entity refers to any industrial or commercial undertaking which is owned and managed by the central, state, local government, of which the output is marketed, that is not supplied for free. For example, हमारे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मोस्टली अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें, if we are talking about government hospitals, so these hospitals will provide you services at
अ वेरी रीजनेबल रेट, बहुत ही सस्ता होगा। अगर आप गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल्स में जाते हैं, इफ यू आर गोइंग टू अ सिविल हॉस्पिटल, योर बट ऑल द थिंग्स, ऑल द सर्विसेज यू आर गेटिंग इन दिस हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल से जो भी आपको सर्विसेज मिलेंगी वो बहुत ही कम रेट पे मिलेंगी या फ्री ही मिलेंगी। ऑलमोस्ट ऑल दो सर्विसेज विल अवेलेबल टू यू फॉर फ्री। बट इन पब्लिक एंटरप्राइजेज, दीज पब्लिक एंटरप्राइजेज आर ऑल्सो ओन्ड बाय गवर्नमेंट, ये भी गवर्नमेंट ही चलाती है, बट इनकी जो सर्विसेज हैं वो फ्री नहीं है। दीज सर्विसेज आर गिवन विद द अमाउंट ऑफ मनी यू पे। सो इनकी सर्विसेज फ्री नहीं है। ये डिफरेंस है दोनों गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, पब्लिक एंटरप्राइज में और एक नॉर्मल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। देयर इज अ डिफरेंस दैट पब्लिक एंटरप्राइजेज विल नॉट गिव इट्स सर्विसेज फॉर फ्री और वेरी रीजनेबल कॉस्ट, but an government organization will provide you services at a very reasonable cost or very in a no cost type of or no cost type of function। तो उसमें आपको फ्री में चीजें मिलेंगी या बहुत ही कम रेट में मिलेंगी, बट एक कॉर्पोरेट पब्लिक एंटरप्राइज में आपको उस चीज के लिए कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, दीज आर द पब्लिक फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। द एग्जांपल्स आर गिवन हियर: इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, public enterprise established under private organization, Hindustan Machine Tools, Hindustan Antibiotics Limited, Chittaranjan Locomotive Works. These are all examples of public enterprises which are promoted by government. So what are the schemes under public sector enterprises? Just like I told you, कौन कौन सी स्कीम है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर जिनको गवर्नमेंट रन करती है। गवर्नमेंट स्कीम निकाली थी, महारत्ना स्कीम, ये आई थी 2010 में। द महारत्ना स्कीम केम अंडर 2010 and this Maharatna scheme come with which kind of companies like GAIL, then GAIL India Limited, then Indian Oil Corporation Limited, Indian Oil you all know, NTPC Limited, Oil and Natural Gas Corporation, Steel Authority of India. These all come under Maharatna scheme. You have to remember these things, that government have organized Maharatna scheme in 2010, and under this scheme these organization come under Maharatna scheme. Then the second scheme which was introduced by Government of India was Navratna scheme in 1997, and under Navratna scheme there are joint ventures, subsidiary, capital expenditure like Navratna Central Public Sector Enterprise, Human Resource Management, mergers and acquisitions. So what is the difference between Navratna and Maharatna is in Navratna the boards have been provided more powers in the areas of capital expenditure. in Navratna scheme जो boards हैं, जो board handle करते हैं उसको, उस organization को जो boards handle करते हैं उनके पास एक पावर ज्यादा है। किस केस में? जो कैपिटल है उसका एक्सपेंडिचर, जो मनी एक्सपेंड हो रही है, द मनी विच इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द मनी विच इज हैपनिंग, देन इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर्स, उसके उनके पास पावर ज्यादा है अगर एज कंपेयर्ड टू महारत्ना स्कीम। Then there is the third type of scheme which was organized by Government of India or introduced by Government of India. But before that, let's take an example which comes under Maharatna scheme. It is very important. Navratna scheme. It is very important. Bharat Electronics Limited, which is well known, BEL. We usually say BEL. Then Container Corporation of India Limited, Engineers India Limited, Hindustan Aeronautical Limited. These all are the 10 other companies come under Navratna scheme. Then Mani Ratna scheme. What is Mani Ratna scheme? Mani Ratna scheme was introduced in 1997. कितनी मनी रत्ना स्कीम्स हैं, कितनी मनी रत्ना सेंट्रल, कितने यूनिट्स हैं इसके अंदर, कितनी कंपनीज हैं इसके अंदर? 74 मनी रत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं। मनी रत्ना स्कीम के अंदर 74 कंपनीज कॉर्पोरेशन है हमारी। देयर आर 74 कॉर्पोरेशन इन अंडर मनी रत्ना स्कीम। वो सारी यहाँ पर मेंशन्ड है। दीज ऑल आर मेंशन्ड हियर, सो यू कैन रिमेंबर सम ऑफ दीज कंपनीज while writing in the examination. Then let's come under the performance of public sector enterprises according to annual report. So we are reading about the annual report. हम 17-18 की एक annual report के बारे में पढ़े। अगर इन public sector enterprises ने क्या perform किया था, what all they have performed in 17-18. Department of Public Enterprises, Government of India, there were 320 central public sector enterprises. So these 320 are total number which comes under Navratna, Maniratna and Maharatna. So these 320 central public sector enterprises comes under all those three schemes which I have discussed. हमने जो 3 schemes discuss करी उनके अंदर ये 320 central public sector enterprises आती हैं।
244 are operating enterprises, 76 are enterprises which are yet to start. तो 240 according to 1718, ये 1718 का डाटा है. According to 1718, 244 are operating, जो 244 operational थी उस टाइम पे. अब stats change हो सकते हैं, but you can remember these stats only. 76 enterprises were yet to start operation. Then 78 enterprises are running in losses. So in 1718 or 1516, 78 enterprises were running in losses. So de-investment in public sector enterprises. What is de-investment? According to de-investment is the action of organization or government selling or liquidating. So what is de-investment? हमने बहुत बार सुना है. We have heard about these things very often, that government is liquidizing or government is selling its assets. तो बहुत बार ऐसा होता है, जैसे कि हम मर्जर देख रहे थे अभी बैंक्स का. वी वर सीइंग द मर्जर ऑफ द बैंक्स. वो क्यों हुआ था? वो इसलिए हुआ था क्योंकि उतने बैंक्स नीडेड नहीं थे. देयर वर अ लॉट ब्रांचेस ऑफ द बैंक्स जो नीडेड भी नहीं थी, वो बहुत ज्यादा खुल चुकी थी. देयर वर मोर बैंक्स अवेलेबल देन इट वाज नीडेड. सो उस केस में क्या करती है गवर्नमेंट सेल कर देती है या लिक्विडाइज कर देती है या मर्ज कर देती है. So de-investment is one of the kind of those things in which government liquidize its assets, जिसमें गवर्नमेंट अपने assets को liquidize कर देती है, यानी कि उसको merge कर देती है या उसको sell out कर देती है. So it is a de-investment. While pursuing de-investment through minority stake scale in listed CPSE, the government will retain the majority stake holding. तो गवर्नमेंट का चाहे liquidize करें या पब्लिक एंटरप्राइज में हमेशा गवर्नमेंट का 51% शेयर रहेगा, चाहे वो उसको सेल आउट कर रहे हैं, चाहे वो उसको रन कर रहे हैं. किसी भी केस में गवर्नमेंट का हमेशा शेयर हमेशा होल्ड गवर्नमेंट का ही रहेगा. द गवर्नमेंट विल होल्ड ऑल द थिंग्स. गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी हाउ वी हैव टू सेल. फिर से समझा दीजिए. किसको? फिर से ऊपर वाला समझा दीजिए. तो डी इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको समझ में नहीं आया? डी इन्वेस्टमेंट का आपको क्या समझ में आया, आप बताइए, मैं आपको फिर उसके बाद बताता हूँ. फिर से समझा दीजिए, ये समझ में नहीं आया. डी इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट सेलिंग और लिक्विडेटिंग एसेट और सब्सिडरी. लिक्विडेटिंग का मतलब होता है आप अपने एसेट्स को लिक्विडाइज कर रहे हैं, यानी कि आपके जो एसेट हैं अगर वो लॉस में जा रहे हैं, आपकी जो चीजें हैं वो लॉस में जा रही है, आपकी कोई एंटरप्राइज लॉस में जा रही है, तो आप क्या करेंगे? उसको लिक्विडाइज कर देंगे, यानी कि उसके जो एसेट्स हैं उनको या तो सेल आउट कर देंगे या फिर आप उनको किसी और जगह पे मर्ज कर देंगे. तो गवर्नमेंट ऐसा कब करती है? ऐसा तब किया जाता है जब हमारी एंटरप्राइज लॉस में चल रही होती है, और उन चीजों को लॉस को ओवरकम करने के लिए हम लिक्विडाइज कर देते हैं. डी इन्वेस्टमेंट का मतलब वही है कि आप किसी भी लॉस में जाती हुई चीज को मर्ज कर दें या फिर उनके एसेट्स को यूज कर ले, कहीं और पे यूज कर लें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. जो अभी मैंने बैंक्स का एग्जांपल भी दिया था. तो अगर आप का कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कोई एक कॉर्पोरेशन लॉस में जा रही है, तो उनके एसेट्स को लिक्विडाइज करना, उनके एसेट्स को आपको किसी और जगह पे यूज करना या फिर उनको सेल आउट कर देना, डी इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है. उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड पब्लिक एंटरप्राइज एंड प्राइवेट एंटरप्राइज. पब्लिक एंटरप्राइज, एज आई हैव टोल्ड यू, मैंने जैसे आपको बताया, पब्लिक एंटरप्राइज में क्या होता है कि मोस्टली जो उसके शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट होल्ड करती है, उसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है. So in public enterprise, most of the hold is with the government. Either it can be central government, state government, वो state government भी हो सकती है, central भी हो सकती है, या अपनी कोई local government भी हो सकती है. तो वो सारा होल्ड पब्लिक एंटरप्राइज का गवर्नमेंट के पास होता है. वही प्राइवेट एंटरप्राइज में ऐसा नहीं है. प्राइवेट एंटरप्राइज में प्राइवेटली मोटिवेटेड बाय प्राइवेट एंटरप्राइज का जो मोटिव होता है और जो होल्ड होता है, वो मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना. किसी भी तरह से आपको प्रॉफिट कमाना है. यू हैव एट एनी कॉस्ट यू हैव टू गेन प्रॉफिट, तभी आपकी प्राइवेट एंटरप्राइज रन करेगी. देन द होल्ड ऑफ दैट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट एंटरप्राइज इज विद द पर्सन और विद दोज पर्सन और बोर्ड ऑफ मेंबर्स जिन्होंने उसको स्टार्ट किया है. दोज मेंबर्स हु हैव स्टार्टेड दैट ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास उसका होल्ड होगा एक प्राइवेट एंटरप्राइज का. What are the features of public enterprise? Features of public enterprise वही होंगे कि फीचर्स में पब्लिक एंटरप्राइज जो गवर्नमेंट के होल्ड वाली एक एंटरप्राइज है, उसमें क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं. दैट उसमें कभी कैपिटल की कमी नहीं होगी. दैट क्योंकि कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय गवर्नमेंट. एवरी कैपिटल जो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए वो सारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है.
So capital की कभी कमी नहीं होगी. There will be no issue with the capital of the public enterprise. The second point is about capital only. The whole or major part of the capital required for the public enterprise is provided by the government. जो इतना भी पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो उसका कोई इशू नहीं आएगा पब्लिक एंटरप्राइज में कभी, क्योंकि गवर्नमेंट उसको मैनेज करती है. तो जो उसका ईज ऑफ वर्क होगा बड़ा इजी होगा, जो उसके रनिंग होगी वो बड़ी स्मूथ होगी. A public enterprise can be organized as a department undertaking or as a statutory corporation or as a government company. So it can be of any type. जो government public enterprise होगी वो government के according किसी भी तरह की हो सकती है. It can be a government company, वो एक government company हो सकती है, statutory corporation हो सकती है, departmental undertaking हो सकती है. ये department undertaking और statutory corporation हम पढ़ेंगे आगे. We will be studying these terms later in this unit. Then what are the objectives? Objective क्या है इसके? Objective at the start of the unit I have told you that objective of public enterprise is to boost our country with economic growth, industrial growth. When public enterprise is formed, the main motive of that enterprise was to boost the economic growth of India, to secure public welfare, to reduce inequalities and distribution of the income and wealth. So all those things, these are the very basic points, and you can read these points. To mobilize public saving through financial, to control the prices of essential customer goods. So किसी भी कस्टमर के गुड्स को कंट्रोल करना, क्योंकि प्राइवेट, जब सारी चीज प्राइवेट थी तो देयर वाज अ मोनोपोली के उसमें द प्राइवेट कंपनीज वर चार्जिंग अकॉर्डिंग टू देयर विल. वो अपनी मर्जी के हिसाब से चार्ज कर रही थी, पर इन प्राइवेट एंटरप्राइजेस ने जब वही काम करने शुरू कर दिए, दे हैव कंट्रोल्ड द कंज्यूमर गुड्स के जो प्राइसेस हैं उनको कंट्रोल कर लिया गया था. दे हैव कंट्रोल्ड द एसेंशियल प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड. तो ये कुछ उनके ऑब्जेक्टिव्स थे व्हाइल स्टार्टिंग अ पब्लिक एंटरप्राइज. देन कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज. कंट्रीब्यूशन में हम अगर एक पॉइंट पढ़ें, दे हैव हेल्प्ड द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज. तो कोई भी पब्लिक एंटरप्राइज है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी पब्लिक एंटरप्राइज जो गवर्नमेंट ओन्ड है, वो मोस्टली हर पार्ट ऑफ कंट्री में अवेलेबल है. एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री इज हैविंग अ पब्लिक एंटरप्राइज. फॉर एग्जांपल अगर हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जांपल लें, इफ वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट इज अवेलेबल इन द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. ये हर पार्ट ऑफ द कंट्री में अवेलेबल है. तो उससे हुआ क्या कि जो उस रिमोट पार्ट में जो लेबर थी, जो वहां के लोग थे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिली. द एम्प्लॉयमेंट वाज गिवन टू द पीपल, पर्सन्स बिलोंगिंग टू दैट एरिया. तो ये कुछ उसके फायदे थे, क्योंकि अगर हम प्राइवेट कंपनी शुरू करते हैं, वी आर स्टार्टिंग ए प्राइवेट कंपनी, हम उस कंपनी को शुरू करेंगे एक अच्छी जगह पे. हम फॉर एग्जांपल हम एक ऐसे सिटी में शुरू करेंगे विच इज वेरी डेवलप्ड, जहाँ के लोग कैपेबल हैं हमारी चीज खरीदने के लिए. पर पब्लिक एंटरप्राइज में ऐसा नहीं है. इट इज नॉट द थिंग विद द पब्लिक एंटरप्राइज. पब्लिक एंटरप्राइज, बिकॉज इट इज रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज स्टार्टेड इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, वेदर इट इज बैकवर्ड, वो चाहे बैकवर्ड है चाहे वो फॉरवर्ड है, एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज स्टार्टेड. और जिसकी वजह से फायदा मिला वहां के लोगों को. द पर्सन्स व्हिच वर अवेलेबल देयर गॉट द जॉब इन दोस पब्लिक एंटरप्राइजेस, गॉट द जॉब ऑफ, अगर वो इलिटरेट हैं दे गॉट द जॉब ऑफ लेबर, अगर वो इलिटरेट हैं दे गॉट द जॉब अकॉर्डिंगली. वो अपनी कैपेबिलिटी और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उनको वहां जॉब मिली. और रिमोटेस्ट एरियाज को भी फायदा हुआ, वो वहां से डेवलप, क्योंकि रिमोट एरियाज में ये पब्लिक एंटरप्राइज शुरू हो गई, बिकॉज दिस पब्लिक एंटरप्राइजेस वाज स्टार्टेड इन रिमोट एरियाज. सो डेवलपमेंट ऑफ दोज रिमोट एरियाज वाज सीन. उस एरियाज की डेवलपमेंट भी हुई बहुत ज्यादा. तो प्रॉब्लम क्या थी पब्लिक एंटरप्राइजेस में? अब तक हमने फायदे पढ़े, वी हैव स्टडीड द बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. नाउ वी विल स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. व्हाट वर द प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस? So public enterprises क्योंकि रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट वाज रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पब्लिक एंटरप्राइजेस के हैं, वो उनकी कंटिन्यूटी नहीं है, वो चेंज होते रहते हैं, उनके ट्रांसफर होते रहते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो टॉप मैन है उनके ट्रांसफर होते रहते हैं, जिसकी वजह से एक इनकंटिन्यूटी आ जाती है. देयर इज अ इनकंटिन्यूटी बिकॉज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर गेटिंग ट्रांसफर्ड और आर गेटिंग चेंज्ड वेरी ऑफन. सो देयर इज अ इनकंटिन्यूटी, क्योंकि डिसीजंस जो हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं, वो आज, फॉर एग्जांपल वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ एक डिसीजन आज लिया गया, वी हैव टेकन अ डिसीजन टुडे, बट टुमारो दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज चेंज्ड. वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कल चेंज कर दिया गया. तो जो डिसीजन हमने कल लिया था, जो नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आए, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो भी उस चीज पे एग्री करें. तो देयर इज अ अनसर्टेनिटी. ये एक प्रॉब्लम है पब्लिक एंटरप्राइजेस की. देन पब्लिक एंटरप्राइज बिकॉज इट इज रन बाय गवर्नमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट रन करती है पब्लिक एंटरप्राइज, तो एक सिक्योरिटी है जॉब की.
एवरी पर्सन हु इज वर्किंग इन दैट पब्लिक एंटरप्राइज, किसी भी पीएसयू में अगर कोई पर्सन काम कर रहा है तो उसको एक सिक्योरिटी है जॉब की, जिसकी वजह से मोटिवेशन लैक करती है. देयर इज अ लैक ऑफ मोटिवेशन बिकॉज दे नो दैट जॉब इज सिक्योर. उसको उनको पता है कि उनकी जॉब सिक्योर है, तो उनको एक मोटिवेशन की कमी दिखाई देती है. देयर इज अ लैक ऑफ मोटिवेशन सीन. सो वो भी एक प्रॉब्लम है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की. So work unions are strong and well organized, so they are able to extract from these enterprise more than their rightful share. Because उनकी जॉब सिक्योर है, इन वर्कर्स की जॉब सिक्योर है, दे हैव अ सिक्योर जॉब. सो यूनियंस जो बनी हैं, जो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, देर आर यूनियंस विच आर फॉर्म्ड. दीज यूनियंस बिकॉज दे नो देयर जॉब इज सिक्योर्ड, दीज यूनियंस आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इनको पता है इनकी जॉब सिक्योर है, दे आर स्ट्रॉन्ग. और ये यूनियन ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर लेती है, जो उनकी डिमांड्स हैं वो बहुत ज्यादा रख देते हैं, और उनको क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो कई बार इन डिमांड्स को पूरा करना पड़ता है. तो ये भी एक प्रॉब्लम है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में. एक और प्रॉब्लम जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में है कि ये बहुत लार्ज है इन साइज में, क्योंकि ये गवर्नमेंट रन है. दीज आर गवर्नमेंट रन एंटरप्राइजेज, दे आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री. ये बहुत ज्यादा बड़ी हैं, तो इनको मैनेज करना, इनकी मैनेजमेंट, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. मैनेजिंग दीज लार्ज लेवल ऑफ एंटरप्राइजेज इज वेरी डिफिकल्ट. इट इज नॉट अ स्मॉल कंपनी. ये बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना. किसी को इफ एनीवन इज हैविंग इशू इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इज ओवर नाउ, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज खत्म हो रहा है. तो इफ एनीवन इज हैविंग एनी इशू इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, या शिवांशु तिवारी. Shivanshu Tiwari have raised the hand. Shivanshu, if you are speaking, you can on your mic, switch on your mic. So I think Shivanshu Tiwari have mistakenly raised the hand. So we'll be starting the next part of the unit. After 2 minutes, we will be starting the next part of the unit. If anyone have any issue with public sector enterprise, they can ask. Hello. Yes.
So let's start with the departmental form of organization. Departmental organization, हम departmental organization को शुरू करते हैं. So if anyone have any idea about departmental organization, so I think no one have an idea about departmental organization. What is departmental organization? Are those organizations which are run by government only, which are run by government for the sole purpose of providing facilities to Indian nationals or any national according to the government in which they are run. So we while taking the example, हम एक example लेके समझते हैं. Let's take an example of a departmental organization. ISRO का नाम सबने सुना होगा. Everyone have heard about ISRO. So ISRO is a departmental organization whose sole purpose is to develop the country, whose sole purpose is to find something new, and it is run by government, it is funded by government, but it is not for benefit of anyone. It is for benefit of the country. It is for benefit of advancement of the country. It is not for any kind of financial benefit. तो इसरो से हमें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होता है. जस्ट लाइक इसरो देयर आर मेनी कंपनीज लाइक DRDO. DRDO is run by Government of India, Defense Research Development Organization, or there are companies like one company which developed the COVID vaccine. So the sole purpose of those companies were to develop something which will contribute to the advancement of the country, and in turn उसकी country के advancement की वजह से क्या होगा, हम develop करेंगे as a country as a whole. So these are departmental form of organization. फीचर क्या होता है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? ओवरऑल कंट्रोल रेस्ट विद द मिनिस्टर. सो द कंट्रोल ऑफ दीज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लाइक रेलवे बोर्ड, telecommunication board, the control of these organization is with the minister under which they are running. For example, telecommunication board, if it is running by the central government of India, the control will be with the highest minister of that government. Or if it is a postal services board, railway board, so the government may appoint board. The examples of such boards are railway board, postal board, telecommunication board. However, in the form of organization, the overall responsibility rests with the minister, and the minister is answerable for legislature. So minister is, the responsibility is with the minister only. The responsibility होगी इनको run करने की, वो भी minister के पास होगी. और अगर उसमें कोई loss होता है, profit होता है, तो answerable भी minister ही होगा. Minister will be answerable for the efficient operation of these undertakings. एम्प्लॉयज कौन होते हैं इन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के? सिविल सर्वेंट्स होते हैं जिनको यूपीएससी हायर करती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिनको हायर करती है, वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं. दीज आर द सिविल सर्वेंट्स व्हिच रन द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. कौन फाइनेंस करता है? फाइनेंस को गवर्नमेंट करती है. इंडिपेंडेंट आर नॉट द फाइनेंसिस डिपार्टमेंट ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का पार्ट होता है, बट इट इज नॉट solely by the government of India. They are financed out by the government treasury through the annual budget. Government treasury जो है, जो हम गवर्नमेंट के पास जो पैसा होता है, the government treasury, the money available with the government in the treasury, it is financed through that treasury. और इसका जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो भी इस ट्रेजरी के अंदर ही जाता है, इसके बजट के अंदर जाता है. एवरी काइंड ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट गोज अंडर द गवर्नमेंट ट्रेजरी. What are the merits of these kind of organization? हम will be studying about one merit of this kind of organization. Maximum degree of government control. जैसे कि PSU में हमने बात की थी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जो मैक्सिमम कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है. तो मैक्सिमम कंट्रोल इज गिवन टू द गवर्नमेंट. वैसे ही डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में भी द मैक्सिमम कंट्रोल इज गिवन टू द गवर्नमेंट, वेदर इट इज अ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और एनी काइंड ऑफ लोकल गवर्नमेंट. Then what are the limitations? Let's study one of the limitations of departmental organization. Political instability, because it is run by the government, because it is solely owned by the minister under which it is running. There is political instability. From the word political instability आप समझ सकते हैं, the undertakings are generally at the mercy of the political party which is in power.
The fate of the departmental organization also depends on the balance of the power between ruling party and the opposition. Hence, there is even possibility of victimizing such undertaking because of the political changes. तो इससे हम समझ सकते हैं that अगर क्योंकि politically influenced होती हैं ये सारी politically तो there are many uncertainties, बहुत सारी uncertainties होती हैं politics में. There are many uncertainties in the politic environment of our country. So उसमें क्या होता है that there may be an issue. So there was an issue with the communication. Suffer for political instability होती है इनमें क्योंकि ये politically run की जाती हैं तो एक instability रहती है कि एक गवर्नमेंट इस फेवर में होगी कि हम इसको इस डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को रन करेंगे तो सेकंड गवर्नमेंट व्हेन द सेकंड गवर्नमेंट कम्स आफ्टर इलेक्शन इट विल नॉट बी इन फेवर ऑफ रनिंग दैट डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सो देयर विल बी अ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसकी जो लाइफ है उसका भी एक क्वेश्चन रहेगा दैट फॉर हाउ मच टाइम इट विल रन तो ये कुछ डिमेरिट्स हैं और भी डिमेरिट्स हैं एब्सेंस ऑफ कंपटीशन बिकॉज इट इज रन बाय गवर्नमेंट देयर विल बी इट इज ऑब्वियस दैट कंपटीशन विल नॉट बी देयर प्रॉफिट मोटिव विल नॉट बी देयर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स समटाइम्स कुछ गवर्नमेंट्स के पास फंडिंग नहीं होती है देयर आर मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स व्हिच डू नॉट हैव फंडिंग तो इन दैट केस क्या होता है कि ये डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग कुछ टाइम के लिए बंद भी कर दी जा सकती है तो दीज आर द इश्यूज व्हिच आर फेस्ड बाय डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन then let's move to 7.7 public cooperation is one of those bodies public corporation is one of those bodies which is also known as statutory corporation the capital is wholly subscribed by the government it is managed by the management committee constituted according so public corporation is also like those corporations which are run by government of India only So these are also run by government of India or government any government state government or private government or local government sorry so the public corporation are constituted किस पर्पस के लिए constitute की गई थी public corporation ये कुछ points हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं public corporation क्यों constitute क्यों बनाई गई to promote development so there जो these points are similar to all which we have studied earlier also these points will be similar to you can read these points this will you will find them very similar to all those private enterprises public enterprises and public corporation they will be somewhat similar and you can read those points so we'll by not wasting time we'll be going to the next unit if anyone have any issues on these topics they can ask today also they can ask tomorrow also we'll be joining the class tomorrow also so you can note all those points which you have issues with and we can discuss those points tomorrow also so if we go to 7.8 government company if anyone have any idea about the government companies so let's discuss the government company without any delay so an overview of government company is those companies which have for example there are many private companies which are facing losses
बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं which are just started and they have started facing losses. So what happened with these kind of companies? Sometimes government acquire those companies. Government sometimes acquires shares of these existing private companies when they are unprofitable and have become insolvent. जब इनको फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं दिस प्राइवेट कंपनीज को, तो गवर्नमेंट उनके शेयर को एक्वायर कर लेती है. गवर्नमेंट एक्वायर सच कंपनीज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, बिकॉज क्योंकि ये कंपनीज कुछ अच्छा कर रही थी. दिस कंपनीज आर डूइंग समथिंग गुड. फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी भी कंपनी का एक एग्जांपल ले लें, कोई भी एक प्राइवेट कंपनी जिसने एक सोशल कॉज में अपने आप को शुरू किया, विच हैव स्टार्टेड फॉर अ सोशल कॉज, पर वो क्योंकि उसको सोशल कॉज था, वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई, दैट कंपनी हैव नॉट बीन प्रॉफिटेड. तो उस केस में गवर्नमेंट उसके शेयर्स एक्वायर कर लेती है, बिकॉज वो एक पब्लिक इंटरेस्ट में वो एक कंपनी चल रही थी, तो उसको गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है. दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. इसमें मिक्स्ड ऑनरशिप होती है. देयर आर मिक्स्ड ऑनरशिप, इंडस्ट्रियल प्रमोशन होता है, लैक ऑफ इंसेंटिव्स होता है, बिकॉज दिस कंपनी इज फॉर सोशल कॉज, तो इंसेंटिव्स विल बी वेरी लेस. Mixed ownership because government have acquired shares. It was not solely dependent. It was not solely held by government of India. So ownership will be there will be a dispute in the ownership. It may be solely held by the government, any government, or it can be held by a private organization. तो ये भी एक डिपेंड करेगा कि ऑनरशिप किस पे है. समटाइम्स इन ऑर्डर टू सिक्योर कैपिटल, टेक्निकल एक्सपर्ट गाइडेंस एक्सेट्रा, द गवर्नमेंट में desirous of starting an enterprise in association with the private entrepreneurs. In such situation, the government may set up mixed ownership companies. The example of mixed ownership, तो example क्या है mixed ownership companies का? Hindustan Machine Tools, Heavy Engineering Corporation, Hindustan Cables. So these all are companies which have mixed ownership. Either they have more share of government, or either they have less share of government and more share of a private entrepreneurs. Mixed ownership is an issue with government companies. Then lack of incentives, we have already discussed what is lack of incentives. Because private entrepreneur does not come forward to establish enterprises, there are risks, there are larger gestation periods, heavy investment, so there are very less incentives to all those people who are working in these government companies. So what are the features of the government companies? In government companies के features क्या होंगे? Managed by board of directors. These are somewhat similar to all those things which we have studied earlier. Corporate body, scope of private participation in the capital. A government company may be wholly or partially owned by the government. In case share of the government is not less than 51%. Then managed by board of directors, enjoys financial independence, independent staffing, independent accounting, and you can read all those points. These are very easy and similar points which we have read earlier also. What are the merits? Easy to form? Yes. Please say one more time, mixed ownership. Mixed ownership. Yes. Yeah, I'll talk about the mixed ownership again. So I'll read out the mixed ownership in this book, and I'll try to make you understand. Sometimes in order to secure capital, technically know-how, expert guidance, etc., the government may be desirous of starting an enterprise in association with private entrepreneurs. So what happens is sometimes we are seeing in current scenario, what we are seeing is there are many entrepreneurs who are starting many businesses. For example, a tech business, or for example, an artificial intelligence business. Why these artificial intelligence businesses are promoted nowadays? These artificial intelligence are promoted nowadays because government is taking keen interest in all those technologies like artificial intelligence, machine learning. These are all developed by entrepreneurs. These were not developed solely by government or any government organization. Artificial intelligence was not developed by any government organization. It was developed by entrepreneurs. Now, what is happening is government is taking interest in these kind of things because these kind of inventions or these kind of things are helping the country to grow. So in this case, what government do is government उस entrepreneur को, they are supporting that entrepreneur, वो उस entrepreneur को support कर रहे हैं by taking their shares. उनके कुछ shares वो ले लेते हैं. वो share अगर 51% से ज्यादा है, if that share are more than 51%, then the hold will be with the government. अगर वो 51% से कम है तो होल्ड उनका गवर्नमेंट पे नहीं होगा, वो प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके पास ही होगा. तो ये एक मिक्स्ड ओनरशिप का एग्जांपल है जिसमें गवर्नमेंट इज टेकिंग इंटरेस्ट in the work of the entrepreneurs
and then those that interest further एक amplify करता है उस चीज को, that interest is amplifying that thing, and ये एक chain है, it is a chain which will further boost the economy of India, which will further improve the technical side of India. So मिक्स्ड ओनरशिप एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल है गवर्नमेंट कंपनीज का. इसमें कुछ एग्जांपल भी दिए हैं. हिंदुस्तान मशीन टूल्स एक कंपनी है which was run by mixed ownership of government and private entrepreneurs. Then Hindustan Shipyard Limited is also one of the example. Having Engineering Corporation is also the example. Hindustan Cables is one of the examples, which is run by the government of India and also by the entrepreneurs in a mixed ownership style, जिसमें दोनों ओनर्स हैं, गवर्नमेंट भी ओनर है और एंटरप्रेन्योर भी ओनर है. वो डिपेंड करेगा कि किसके कितने शेयर्स हैं. इट विल डिपेंड ऑन द शेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Then there are merits, demerits. You can read these merits and demerits. We'll be moving to the next topic, so that there is a difference between departmental organization, public corporation, government company. If you will read this difference only, you will be able to understand much of those things which we have studied in this topic, because in conventional mode which we are doing right now, in which I am speaking and you are listening, there are many things which are missed. बहुत सारी चीजें हैं जो मिस हो जाती हैं. अगर आप इन डिफरेंस को ही पढ़ लेंगे, इफ यू आर रीडिंग दिस डिफरेंसेस, आपको रिकॉल हो जाएगा कि हमने इस काउंसलिंग सेशन में क्या सुना था. तो यू कैन इजीली रिकॉल ऑल दोस थिंग्स. तो उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट यूनिट पे. जितना इस यूनिट का हम कवर कर पाएंगे इस काउंसलिंग सेशन में, बिकॉज वी हैव आई थिंक 2 more classes in this BCOC unit. We'll be try to sum up with this unit today. International business and multinational corporation. If anyone have idea about multinational corporation or example of multinational corporation, they can tell me, or we will start further. सर, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन मींस जो एक से ज्यादा देश में ऑपरेट करता है, जिनका ब्रांचेस हैं. बिल्कुल 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 सही. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आर दोज कॉर्पोरेशंस व्हिच आर ऑपरेटेड इन मल्टीपल कंट्रीज. So we'll be studying about these multinational corporations in detail. So multinational companies, what are the objectives of multinational companies? Definition of international business, what is international business? Multinational corporation, we will be studying about these things in this unit, or we will be having an overview about these things, not studying, because we have a less time capacity. So what is international business? International business क्या होता है? In simple term अगर कोई बताना चाहे तो बता सकता है, नहीं तो we'll move further. So what is international business is, if you have started a business, if you have started a small business and your business you have been recognized by other people. अगर आपके business आपने शुरू किया है और वो बहुत सारे लोगों ने recognize किया, आपके consumer जो हैं वो बहुत ज़्यादा increase हो गए हैं, तो what you will be doing is expanding. जो next step होता है वो expand करना होता है. तो first thing is you will be expanding that business within the country. After that, if it is successful in the country, you will be expanding that business out of the country. So international business in simple terms is expanding your business, expanding your capital, expanding your all those things out of the countries. Out of the country, expanding out of the country, there will be very many kind of difficulties. For example, political difficulty, legal difficulties, social difficulties, economic difficulties. There are many kind of difficulties in going abroad, in going international. So you have to overcome all those difficulties and then go with an international business. International business is all commercial transaction, private or government, sales and investment. So all commercial transactions carried out beyond the boundary of the country, which we have discussed right now, कि अगर हमारी boundary of the countries से ज़्यादा कोई भी commercial transaction हो रही है तो वो एक international business में आएगी.
कैसे कैसे टाइप की ट्रांजैक्शन हो सकती है, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, ट्रेड, मैनेजमेंट एटसेट्रा। ये अगर इनमें से हम कुछ भी करते हैं, इफ एनी ऑफ दीज थिंग्स विच वी आर डूइंग आउट ऑफ द लिमिट्स ऑफ आवर कंट्री, इट विल कम अंडर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस? इंटरनेशनल बिजनेस की क्या इंपॉर्टेंस है? तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो वी विल बी हैविंग अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट कंट्रीज। अगर हम कोई एक फूड बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग अ फूड बिजनेस, सो विल बी अवेयर अबाउट विच कंट्री इज हैविंग विच काइंड ऑफ फूड, हम कौन सी कंट्री कौन से टाइप का फूड खाना पसंद करती है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए का एक बिजनेस है मैकडोनल्ड्स, सबने नाम सुना होगा, वी हैव हर्ड अबाउट मैकडोनल्ड्स। सो दे in US, because of less time and with the people, they what they will do is they want an instant food and instant coffee. So what they will do is they will go to McDonald's and pick up an instant coffee and instant burger. They will pick up and they will straight away go to their work. So these kind of things are different in different companies. हर कंट्री में डिफरेंट होंगी। किसी कंट्री, क्योंकि वो बिजी कंट्री है, तो उसमें एक रेडीमेड फूड की बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी। तो किसी कंट्री में, क्योंकि वो उतनी बिजी नहीं है, तो वहाँ पे रेडीमेड फूड की जगह जो हम कन्वेंशनल वे से फूड बनाते हैं, उस फूड की ज्यादा डिमांड होगी। तो हमारे पास एक अवेयरनेस होगी बिजनेस की। अगर हम इंटरनेशनली बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, वी विल बी हैविंग अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट कंट्रीज। देन वी विल, क्योंकि वी आर ऑपरेटिंग इन डिफरेंट कंट्रीज, तो वी विल बी शेयरिंग द टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल, इफ कंट्री इज मोर कैपेबल देन इंडिया, अगर कोई कंट्री हमारे से ज्यादा कैपेबल है, तो वहाँ की क्योंकि हम फॉर एग्जांपल अगर हम फूड बिजनेस ही, इफ यू आर ऑपरेटिंग अ फूड बिजनेस इन अमेरिका, जो हम फूड बिजनेस यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं और हम वही फूड बिजनेस अमेरिका में ऑपरेट करते हैं, तो क्योंकि वहाँ की टेक्नोलॉजी हमारे से ज्यादा एडवांस है, बिकॉज द टेक्नोलॉजी ऑफ दैट कंट्री इज एडवांस्ड। So the machinery which is used in America, we can use that technology in India also, because क्योंकि अब हमारा बिजनेस है, we are running that business in America also, हम उस बिजनेस को अमेरिका में भी रन कर रहे हैं। तो वहाँ की हम मशीनरी, जो हम मशीनरी अमेरिका में यूज कर रहे हैं, विच आर वेरी एडवांस्ड, और जो हम मशीनरी जापान में यूज कर रहे हैं या किसी एडवांस कंट्री में यूज कर रहे हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग दोज मशीनरी इन अमेरिका और एनी अब्रॉड कंट्री, वी कैन ट्रांसपोर्ट दोज मशीनरीज टू इंडिया ऑल्सो। तो उससे क्या हुआ कि हमें नई जो मशीनरीज हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है, वो इंडिया में भी आ गई। जो नई टेक्नोलॉजी दूसरी कंट्री में अवेलेबल थी, वो इंडिया में भी आ गई, डिफ्यूज हो गई है इंडिया में भी। तो उससे एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। इंडिया भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस होती है, हमारी कंट्री भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस होती है, क्योंकि दूसरी जगह की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे यहाँ पे अब डिफ्यूज हो रही है। तो ये एक एडवांसमेंट है इंटरनेशनल बिजनेस की, एक इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल बिजनेस की। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, जैसे कि स्टेबिलिटी इन प्राइसेस, ग्रेविटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। तो क्योंकि पहले क्या होता था, व्हाट हैड हैपेंड अर्लियर, जो गुड्स इंडिया में बन रहे हैं वो इंडिया में ही सोल्ड हो रहे हैं, या गुड्स किसी और कंट्री में बन रहे हैं, आर सेलिंग इन दैट कंट्री ओनली। तो उस केस में क्या होता था, हम सिर्फ इंडिया के ही गुड्स को यूज कर पा रहे थे। वी वर यूजिंग द गुड्स ऑफ इंडिया, ऑफ आवर कंट्री ओनली, and similar to other countries were using the goods of their country only. But due to international business, क्या हुआ है कि that if we want a food which is popular in US, or if we want a food which is popular in China, for example Chinese foods, so वो फूड बड़ी इजीली अवेलेबल है। अब इंडिया में भी वो जो यूएस में फूड था वो बड़ी इजीली अवेलेबल है। वो क्यों इजी हुआ है? वो इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से इजी हुआ है। दैट हैड बिकम इजी बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ओनली। सो एमएनसी, जैसे कि अभी एक वन ऑफ द लर्नर हैव टोल्ड व्हाट इज एमएनसी। एमएनसी इज दोज कंपनीज व्हिच आर ऑपरेटिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, जो डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट करती है, मल्टीनेशनल कंपनी। फॉर एग्जांपल, हम किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी का एग्जांपल लें, जिनको हम यूजुअली एमएनसी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आईबीएम हो गया, गूगल हो गया। दीज कंपनीज आर ऑपरेटिंग फ्रॉम, जो ये कंपनी है ये ऑपरेट कर रही हैं अलग अलग कंट्रीज में से, अलग अलग कंट्रीज को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। दिस कंपनीज आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मेनी कंट्रीज। उससे हेल्प क्या होती है, एमएनसी से हेल्प क्या होती है मल्टीनेशनल कंपनीज से? फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ आईबीएम इंडिविजुअली हैव 1.5 lakhs ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज ओनली। आईबीएम के पास 1.5 लाख के करीब, उनकी टोटल स्ट्रेंथ है 4.5 lakhs। आईबीएम की टोटल स्ट्रेंथ अराउंड 4.5 lakhs। From that 4.5 lakhs, 1.5 lakhs are operating from India only. So these multinational companies are giving jobs to 1.5 lakh Indians. It is a very big deal. So multinational companies की वजह से फायदा क्या हुआ है? What is the importance of multinational companies is that different countries are getting jobs because of these MNCs. These software companies are providing jobs to because of these to all those employees which are available in that
country in which they are operating. There are many examples of software companies like Accenture is an American company, then Google is an American company. Then there are many companies which are from different countries also. For example, Samsung is a Korean company. What they are doing is they are MNCs. They are coming to different countries. They are providing jobs there. They are providing services in very less cost because they are operating from a different country. For example, if an service is provided in India by IBM or by Samsung, it will be very cheaper because they are manufactured here only. So they are giving jobs, they are giving cheaper rates to the local market. So these are the benefits of these companies. Reduce costs. For example, you can see at the 6th point, reduce cost. Top of growing world market to protect themselves. These are the benefits of multinational companies. Why do multinational companies work here? To reduce impact of tariff. Why is multinational company coming to India? Why they are not operating from America only and they are hiring Indians? Because they are coming to here, they are coming to our country, they are coming to a different country, because operating from here will be very cheaper than operating from their own on land and hiring Indians. It will be very costly. So these, क्योंकि अगर वो इंडियंस को हायर करते हैं और यूएस से ही ऑपरेट करते हैं, यहाँ पर अपनी ऑपरेशंस को नहीं शुरू करते हैं, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. देयर विल बी वेरी लीगल कॉस्ट, देयर विल बी वेरी इश्यूज. सो वो अपने एमएनसी को यहाँ पर सेटअप करते हैं एक कंट्री में और दे गिव जॉब्स टू देम. फीचर्स क्या होते हैं मल्टीनेशनल कंपनी के हमने ये डिस्कस कर ही लिया है. वी हैव डिस्कस दीज फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज दैट दे विल एमएनसी मल्टी प्रोडक्ट एंटरप्राइज, दे प्रोवाइड ट्रेमेंडस मार्केट पावर. ये मार्केट पावर प्रोवाइड करती हैं. देन एमएनसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फोर्सेस. ये डिसाइड करती हैं कि कितनी वेजेस किसको प्रोवाइड करनी है, और ये वेजेस अपना जो इनके जो वेजेस होती हैं वो भी एक अच्छे अमाउंट ऑफ वेजेस होती हैं. तो ये कुछ फीचर्स हैं एमएनसीज के. देन मल्टीनेशनल कंपनी कॉर्पोरेशंस फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, ये हमने डिस्कस कर लिया. वी हैव डिस्कस दिस मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट यूएस, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जापान. दे आर प्रोवाइडिंग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इन इंडिया. देन रीसेंट ट्रेंड्स इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस. क्या रिसेंट ट्रेंड्स हैं अभी, क्या रिसेंटली जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में चल रहा है. डोमेस्टिक टोटल जो सेल्स हैं, ये आप इसमें से पढ़ सकते हैं कि कितनी सेल्स हैं, कितनी एम्प्लॉयमेंट वो प्रोवाइड कर रहे हैं, व्हाट आर द काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स, व्हाट आर द काइंड ऑफ एसेट्स दे आर यूजिंग, दे आर कमिंग टू इंडिया, एंड व्हाट आर द काइंड ऑफ एसेट्स, व्हाट आर द काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स दे आर गिविंग. फॉरेन एम्प्लॉयमेंट, डोमेस्टिक एसेट्स, then foreign domestic employment, then sales, foreign sales and domestic sales. This chart will give you an idea how an MNC is working and how they are giving employment to foreign employees, how they are giving employment to domestic employees, and same with the sales of the company, same with the assets of the company. This is one of those also examples of MNEs. So issues and controversies with MNCs. What are the issues with the MNCs? So let's take an example. If we are talking about issues with MNCs, so अभी हमने recently सुना था कि that one of the company like Apple will set up its manufacturing unit in India. Then we have heard about many companies, many of those companies like laptop companies. There were many laptop companies जिन्होंने those companies who have shown interest of setting up in India, but there were issues with the government taxes structure. There were issues with the legal issues. There were legal issues with the structure. So these legal issues, these technical issues, these all those issues, what the companies will do is, जो ये लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, जो HP थी, जैसे उन्होंने पहले इंटरेस्ट शो किया इंडिया में आने का, बट देन उन्होंने दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर लिया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज और कंट्रोवर्सीज थे. यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी थी. देयर वर लेस रिसोर्सेज अवेलेबल. देयर वर मेनी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट. तो उन्होंने क्या चूज किया, दैट वी आर नॉट रनिंग और वी आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. We will be going to some other country which will be having less issues, which will be having more resources, which will be more efficient, as which will have very less legal issues. So ये एक example था. ये आप कुछ points इसमें से पढ़ सकते हैं. इसमें यही points discuss किए गए हैं कि कैसे कौन से issues एक MNC को आते हैं while starting a business, और कौन से issues वो face करते हैं.
अब इंडियन प्रोस्पेक्टिव ऑफ एमएनसी, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, इंडियन प्रोस्पेक्टिव ऑफ एमएनसी के कौन सी, जैसे कि ये सॉफ्टवेयर कंपनीज है, 1990 के बाद एक बूम आया था, देयर वाज अ बूम इन आफ्टर 1990 that these software companies starting operating from India because of less low labor cost। यहाँ की जो लेबर थी वो बहुत कम थी और एफिशिएंट थी। यहाँ के जो इंजीनियर्स थे वो एफिशिएंट थे, उतने ही एफिशिएंट थे जितने यूएस के थे। तो उन्होंने 1990 के बाद एक बूम आया, देयर वाज अ बूम इन एमएनसीज कमिंग टू इंडिया, इन डोमेस्टिक मार्केट ऑफ इंडिया। We are well aware that our finance minister at that time, Dr. Manmohan Singh, started that boom, and that boom was very efficient in boosting the economy of India। उस टाइम पे जो बूम आया था 1990 में, सारी MNCs, we have discussed about IBM, and IBM example of IBM is also shown on the page number 83। IBM, Pepsi, Cola, Welcome, Glaxo, Boots, Bond, etc. These companies started operating its business from India only। और इस बूम की वजह से क्या हुआ था कि इंडिया में जो एक वो था, एक इंडिया में एक जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे थे 1990 में। इन 1990 वी वर वाचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, तो दीज इकोनॉमिक क्राइसिस वर शोन, उनको एक बूस्ट मिला था 1990 के बाद, एकदम से एमएनसीज का एक बूम आ गया था। और इसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी आज कितनी स्पीड से ग्रो कर रही है, उसकी एक डिपेंडेंसी उस 1990 के बूम पे भी डिपेंड करती है। उसके बाद वी हैव नेवर लुक्ड बैक, इंडिया हैव नेवर लुक्ड बैक, एंड फाइनली वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन। तो ये एक एमएनसीज का आना, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का आना, इंटरनेशनल बिजनेस का आना एक बहुत बड़ा पार्ट था हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। और जो हम आज एक डेवलप्ड नेशन की तरफ जा रहे हैं, वी आर ग्रोइंग टुवर्ड्स अ डेवलप्ड नेशन, ये एक बहुत जरूरी था। ये उस टाइम का बूम, 1919 का बूम बहुत जरूरी था। यू कैन रीड अबाउट दीज थिंग्स इन द बुक, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो यहाँ पर हमारी ये यूनिट खत्म हो रही है। वी आर एंडिंग दिस यूनिट हेयर एंड दिस ब्लॉक हेयर। If anyone have any issue in these kind of MNCs which we have discussed, then we have discussed about international business and all those things। अगर आपको कोई issue है, if you have any issue, you can ask, or we will be closing this class for today if no one is having any issue। So I think no No, one sir. yeah, Mewal Prasad। No, sir. No, sir. There Okay, is no issue, sir. you can read these units sir. ओके, यू कैन रीड दिस यूनिट्स टुडे। आप इन यूनिट्स को आज पढ़ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप उसको कल भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। विल बी हैविंग द क्लास टुमारो आल्सो एट द सेम टाइम, और काउंसलिंग सेशन टुमारो आल्सो। एंड वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज नॉट अ कन्वेंशनल क्लास। ये एक कन्वेंशनल क्लास नहीं है जिसमें टीचर इज टीचिंग यू समथिंग। इट इज अ काउंसलिंग सेशन जिसमें आप पढ़कर आते हैं। इट इज अ काउंसलिंग सेशन इन विच यू विल बी कमिंग प्रिपेयर्ड एंड यू विल बी आस्किंग योर क्वेरीज। आपको अपनी क्वेरीज को पूछना है, ना कि आपको बैठकर आराम से सुनना है। सो आई होप यू विल बी कमिंग टुमारो स्टडिंग द नेक्स्ट चैप्टर्स, ऑल और दीज चैप्टर्स ओनली। इन चैप्टर्स को भी पढ़ के आए और नेक्स्ट चैप्टर्स को भी पढ़ के आए, और अगर कोई इश्यूज होते हैं तो आप पूछेंगे। सो फॉर टुडे आई विल बी लीविंग द क्लास। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एंड हैव अ गुड डे। थैंक Thank यू you, सर। sir। किसी के पास बुक्स हैं क्या?